session of 1 week faculty development program on AI tools for effective implementation of outcome-based education, jointly organized by OBE Cell and Internal Quality Assurance Cell. As we are excited to move to our third session of the day, we are joined by expert Professor Ritesh Banpurkar, Dean IQSC, TGPCT, who will share his valuable insights. Professor Ritesh, currently serving as a Dean IQSC and Professor in Department of Mechanical Engineering, TGPCT. Without much delay, I request Professor Ritesh to address the session. Thank you, Sakshi. Good afternoon all, and I hope you all have a good lunch just before this session, and might that session get quite hectic because we are seeing the entire attainment process for outcome-based education. So bear my session at least for 1.5 hours. So before starting this session, already you gone through the basic various parameters of the outcome-based education system. Yesterday, Bodke sir covered most of the topic, Shah sir also covered the most of the topic, and in morning session also experts cover most of the topic, but all those topics are quite theoretical topic, but when we actually did the attainment, entire process is quite different. And for that we require a number of tools, various teaching pedagogies and other things for the calculation of attainment. So why we require the attainment in outcome-based education system? As a outcome-based education system is entirely student-centric approach, means at the end of any course what students are getting from that is the important thing is outcome-based education system. And in previous education system, emphasis is given on the teacher-centric approach, means what teacher are teaching in their class, that is considered as an important thing. But nowadays what student will able to do after completion of that course, after completion of that degree, that is the important thing. And to get an exact outcome, we required two things prominently over there. One is the curriculum, that is the outcome-based education curriculum, and the process for the assessment of that curriculum. In our institute, and I visited most of the institute, what I found that major lacunas are that whatever curriculum developed by the course coordinator or that respective department, that curriculum is first of all not having a outcome-based approach. Entirely that curriculum might get copy paste from any other institute or any other university. If such curriculums are there, then that curriculum is not attainable, means that curriculum is not a outcome-based centric approach curriculum. So for real implementation of OBE, all must develop the outcome-based education curriculum. For the development of outcome-based education, we have 4 important parameters over there. Number 1 are the program outcomes given by NBA. In last session, what are the program outcomes covered by the expert? Then program educational outcome, important parameters of outcome-based education system. Then program specific outcome, every department having their own expertise, and according to that expertise, they having a different outcomes. Electrical department having some different outcomes, civil having different outcome, mechanical having different outcome. And last important parameters of OBE is course outcome. So course outcome must be decided by each and every course coordinator for their courses. So what is the real process for the designing of curriculum? First, what output you want from your student, you decided it first. Nowadays, what process is happening all over? First, they are developing the curriculum of outcome-based education system, and depending on the outcome-based education system, they are developing COs. तो उसमें क्या हो रहा, आप करिकुलम से सीओ बना रहे हो कोर्स आउटकम, तो वो कोर्स आउटकम जो डिज़ायरेबल होने वाले हैं वो कभी आपको अचीवेबल ही नहीं होंगे.
तो आप जब भी कोई कोर्स पढ़ाते हो तो सबसे पहले आप देखिए व्हाट यू वांट फ्रॉम योर स्टूडेंट्स. यू वांट टू डेवलप योर स्टूडेंट इन एक्सपर्टाइज इन सी प्रोग्रामिंग or signal processing or machine designing. What topic you want to be expertise your student. First you decided that, according to that expertise you decided some outcomes, and to achieve that outcomes you decided the course content. Then only that outcome is achievable. Means अगर आज मैंने आलू कट किया तो गोभी की सब्जी नहीं बनाऊंगा. इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ गोभी सब्जी यू हैव टू कट अ गोभी सब्जी. दैट्स व्हाई फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड अ कोर्स आउटकम. टू अचीव दैट कोर्स आउटकम यू डिसाइड योर एंटायर कोर्स. तो फॉर courses having a course outcome, so topmost approach is we have to attain the program outcomes. But to attain the program outcome, what we require? First we require to attain the course outcome. Without attaining course outcome, we are not able to attain any of the above components like program outcome, program educational outcome, and program specific outcomes. So these all are the 12 POs given by the National Board of Accreditation Committee, Delhi, PO1 to PO12. Out of that, PO1 to PO5 are the domain dependent PO, and remaining PO6 to PO12 are the domain independent POs. Means domain dependence means what? जो POs आपके regular teaching से directly अटेन कर सकते हो. मीन्स इंजीनियरिंग नॉलेज, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, डिजाइन डेवलपमेंट, मॉडर्न टूल यूजेस. what are these 5 PO? That PO you can directly achieve from your teaching, regular teaching learning process. That way that POs are considered as a domain dependent, and remaining POs, PO6 to PO12, all these POs are the domain इंडिपेंडेंट POs. मीन्स आप वो रेगुलर टीचिंग से अचीव नहीं कर सकते हो. यू हैव टू डू सम एक्टिविटीज फॉर दैट. बट इन सम केसेस सम POs, domain independent POs are achievable. Suppose civil engineering having a course on ethics. So ethics having that particular department course. So ethics is achievable through that course. And suppose mechanical engineering having a environmental related course, then that environmental related course get achieved in mechanical engineering. But in CAC electronic they don't having any subject regarding ethics, environmental engineering, and they are mapping C programming. Suppose C programming is a subject, and for C programming they are mapping ethics PO at high level और मॉडरेट लेवल. तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आप उसको कुछ पढ़ाओगे नहीं तो वो टॉपिक पे कभी आप उसका असेसमेंट करोगे ही नहीं, और असेसमेंट नहीं होगा तो अटेनमेंट होगा ही नहीं. दैट्स व्हाई दिस POs आर कंसिडर्ड एज अ डोमेन इंडिपेंडेंट POs. Program specific outcomes, every department having a different program specific outcome. Region wise भी vary होते हैं, location wise आपके program specific outcomes vary होती है. Depending upon what input you are getting in your department, according to that also आपके program specific outcomes क्या हो रहे हैं, vary हो सकते हैं, या आपको locality regional wise आप उसको decide कर सकते हो. But that is purely specific to your only department. तो आप प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम 1 to 4 के बीच में 1, 2, 3, 4 मैक्स 4 PSOs आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो. सो दिस इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. ऑलरेडी यू हैव अ knowledge about that Bloom's taxonomy. This one is the old Bloom's taxonomy, but in 2001 that Bloom's taxonomy get revised. So here create, evaluate, analysis, apply, understand. तो remember under ये दोनों भी न्यू है. एक्चुअली इन प्रीवियस एट number 4 there is a create, then there is a evaluate, but in 2001 that Bloom's taxonomy get revised.
पहले आप इवेलुएट करो कोई भी चीज़, उसके बाद ही आप उसको क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के लेवल है 1 2 3 4, ये भी आपके रेगुलर टीचिंग लर्निंग से क्या हो सकती है, अचीवेबल हो सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम अवर अबो 2 लेयर्स, क्रिएट एंड इवेलुएट, that will not get achieved through your regular teaching and learning process. You have to do some activity like project based learning, mini project, internship, whatever activities are there, you can use that activity for that. So now we come to the main part, course outcome. कोर्स आउटकम में आपके 4 कंडीशन होने चाहिए। एवरी सब्जेक्ट और इन टर्म ऑफ NBA सब्जेक्ट को कोर्स बोला जाता है। आप कोई भी कोर्स के 1 2 3 4 5 6 COs आप बना सकते हो। इन आवर इंस्टीट्यूट वॉट एवर वी फॉलो, वी डेवलपिंग COs एज पर यूनिट वाइज, आवर यूनिवर्सिटी ऑल्सो डेवलपिंग COs एज पर यूनिट वाइज। तो ये टोटली गलत प्रोसेस है, यूनिट वाइज कभी CO बन नहीं सकते हैं, ठीक है। But at initial stages, when you are going from outcome-based education system, faculty are not well matured to develop a CO for entire course. That's why at initial stages, when we are entering in OBE-based education system or OBE-based curriculum, so you can develop a COs as per unit-wise. But NBA experts आपको यहाँ पे क्रॉस कर सकता है कि यूनिट वाइज ही क्यों बना है। जनरली यूनिट वाइज CO नहीं होना चाहिए। आपके इंटायर सब्जेक्ट को असेस करने वाले COs होने चाहिए। कोई भी यूनिट CO के साथ क्या हो सकता है, मैप होना चाहिए। सपोज माई 1 CO इज बेस्ड ऑन डिजाइनिंग, 1 CO बेस्ड ऑन अप्लाइंग, तो यूनिट नंबर 1 में भी डिजाइनिंग के कंसेप्ट हो सकते हैं, यूनिट नंबर 2 में भी समवॉट डिजाइनिंग कंसेप्ट आर देयर, यूनिट नंबर 5 ऑल्सो हैविंग ए डिजाइनिंग कंसेप्ट आर देयर। एंड सपोज प्रोग्रामिंग डेवलप करना है तो 1 2 3 यूनिट में प्रोग्रामिंग उसको डेवलप करना है, तो डेवलप प्रोग्रामिंग स्किल माइट बी 1 CO एंड दैट CO will map with 3 units। so CO जो भी आप फ्रेम करोगे डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट वाइज भी कर सकते हो, और फॉर एंटायर करिकुलम यू कैन डेवलप द कोर्स आउटकम्स। सो कोर्स आउटकम्स जो है आपके इम्पोर्टेंट थिंग है, एक्शन वर्ब से चालू होना चाहिए। वहाँ पे नॉलेज, कंडीशन, क्राइटेरिया, ये पैरामीटर्स होने चाहिए। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट पार्ट इज ऑलरेडी covered by previous experts. So now we come to the process of mapping. अभी ये 7 साल यहाँ पे देखने के बाद whatever I conclude, still 90% of department don't having a proper mapping in term of POs and PSOs are concerned. So n numbers of process are there for the mapping of course outcome with program outcomes and program specific outcome, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूट में मैपिंग किया जाता है POs का कोर्स आउटकम के साथ डिपेंडिंग अपॉन वेटेज ऑफ आवर्स। अगर यूनिट नंबर 1 को आप ज़्यादा वेटेज दे रहे हो 8 आवर्स, तो उसका अटेंड मैपिंग का स्ट्रेंथ क्या रह सकता है, माइट बी ज़्यादा रह सकता है। किसी को आप क्या दे सकते हो, कम आवर्स ऑफ दे सकते हो टीचिंग के, तो उसका मैपिंग स्ट्रेंथ क्या रह सकता है, कम रह सकता है। नंबर 1 पॉसिबिलिटीज। नंबर 2 पॉसिबिलिटीज है डिपेंडिंग अपॉन योर मार्किंग, जितने मार्क्स आप वो CO को अलॉट कर रहे हो, वॉट एवर क्वेश्चन पेपर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। सपोज CO1 हैविंग अ 30 मार्क्स क्वेश्चन आउट ऑफ 70 मार्क्स, तो वेटेज ऑफ CO1 अटेंडमेंट क्या रहेगा, आपका ज़्यादा रहेगा। और कोई COs के लिए अगर आपकी मार्किंग कम है तो उसका क्या रहेगा, मैपिंग लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा। बट इन आवर इंस्टीट्यूट वी फॉलो प्रोबेबिलिटी मैट्रिसेस अप्रोच। हियर एवरी PO वी कैटेगराइज इनटू 4 PS means performance indicator. So
PIs काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फॉर्मुलेट किए गए हैं, बट अगेन सेम प्रॉब्लम इज देयर. एवरी टाइम वी से शाह सर ऑल्सो टेक n numbers of your OBE session, but every time I says that don't go with the exact word. हमेशा आप क्या कर रहे हो, वॉट एवर CO यू राइट. अगर आपको लग रहा है आपके CO में साइंस दिख रहा, एनवायरमेंट दिख रहा, तो आपको ऐसा लगता है कि दैट CO हैविंग सम कोरिलेशन विद दैट PO, और वो आपका CO क्या हो रहा, मैप हो रहा है, तो आप वहाँ पे क्या कर देते हो, मैपिंग अच्छे से कर देते हो. कुछ में आप उसका असेसमेंट नहीं कर पाते हो और आप बोलते हो कि ये CO से एनालिसिस हो रहा है. आप अज्यूम कर लेते हो कि बच्चा सोच रहा होगा. आपने कुछ उसको पढ़ा दिया, उसके बाद आपको लग रहा है स्टूडेंट इज थिंकिंग समथिंग अबाउट दैट, मीन्स स्टूडेंट्स इज डूइंग सम एनालिसिस. तो आप फिर एनालिसिस लेवल पे जाके उसको क्या कर देते हो, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉब्लम है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, ये जो POs की लेवल है उसके साथ उसका क्या कर देते हो, मैपिंग कर देते हो. तो ये कभी होना नहीं चाहिए. आपको PO को अच्छे से समझना है, व्हाट PO एग्जैक्टली सेज. सपोज अप्लाई द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन फॉर the solution of complex engineering problem. Means if you are giving some complex problem to your students and your student is able to solve that complex problem by using a mathematical rules, by using a rules of science, or by using a rules of our engineering fundamental. अगर मैं efficiency निकालने को बोलता हूँ और टाइम निकालने को बोलता हूँ, इफ स्टूडेंट इज यूजिंग फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, सो ही वाज यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स टू कैलकुलेट समथिंग. तो इन सच केसेस ओनली द अटेनमेंट लेवल इज 3. भले ही ये आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर फुल्ली 4, 5 चारों के चारों मैप भी नहीं हो रहे, 3 भी मैप हो रहे, बट एट दैट टाइम यू हैव टू यूज योर आइडियोलॉजी. ठीक है, डोंट गो एग्जैक्ट मैपिंग की साइंस भी आ रहा, फंडामेंटल आ रहा, इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस आ रहा है, एंड इंजीनियरिंग नॉलेज ऑल्सो इज देयर. डोंट गो विद दैट philosophy. First go to the crux of that particular PO, then see the performance indicators and go through the crux of your CO, what output you are assuming, what outcome you are predicting from that course outcome, then do the mapping of that CO with that particular CO. So every PO means 12 POs and 3 PSOs are categorized into 4 performance indicator. I will share that PPT so you can check the performance, how all POs are get categorized into various performance indicator. So mapping, those who are in university curriculum, already mapping is given by their university, and those who are in autonomy, they have to do your own design of curriculum, design of CO and entire mapping process. But university में भी जो है, if they want to change the mapping of your course outcome with program outcomes, you are free to change the mapping instead of following the mapping of university curriculum. यूनिवर्सिटी में जिसने भी बनाया होगा, दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटर हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट एस्पेक्ट, बट व्हाट यू आर टीचिंग टू योर स्टूडेंट दैट माइट बी डिफरेंट, टीचिंग टेक्निक्स माइट बी डिफरेंट, content delivery pattern might be different. So according to that you can change your mapping with that particular 12 POs and 3 PSOs. So in our institute what we did, we develop a 4 performance indicator, and if that CO will map with all performance indicator, then we consider probability is 100%, and if probability is 100%, then there is a mapping strength is 3. In NBA there are only 3 mapping strength categories. Number 1 is the
लो, मॉडरेट एंड हाई। लो मीन्स आपका होगा, पुअर मीन्स 1, मॉडरेट मीन्स 2 एंड हाई मीन्स 3। सो मैपिंग स्ट्रेंथ आपका 3 के ऊपर कभी जाएगा नहीं, 4, 5, 6 कभी नहीं रहेगा। एनीवेयर थ्रू आउट द इंडिया मैक्सिमम मैपिंग स्ट्रेंथ विल बी 3। ओके, so in our system what we did, if that particular CO get map with all the performance indicator of that particular PO, then probability is 100%, therefore mapping strength is 3. And if the CO map with 3 performance indicator of particular PO, then probability of matching is 75%, means 0.75. So we considered it as a moderate. Okay, and if that CO get mapped with 2 performance indicator of that particular PO, then mapping probability is 50%, therefore mapping strength given as a 1. सो फर्स्ट कॉलम में आप देखोगे अप्लाई सीओ है, अप्लाई दी लॉ, अप्लाई दी नॉलेज ऑफ गायरोस्कोप फॉर द फील्ड ऑफ अप्लीकेशंस लिखा है, फॉर द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैं कंसिडर कर दूंगा। सो हियर कोर्स आउटकम विल स्टार्ट विद द अप्लाई, एक्शन वर्ब इज देयर, जो आपके ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के 3rd लेवल पे है। अप्लाई कर रहा है नॉलेज ऑफ गायरोस्कोप, तो उसमें मैथमेटिकल नॉलेज भी आएगा, साइंस भी आएगा, फंडामेंटल इंजीनियरिंग नॉलेज भी आएंगे एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन भी आएंगे। आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल ओवर देयर, every branch having a different concepts over there. So all 4 keyword get mapped, therefore total number of PO keywords addressed by CO 4, probability of CO mapping 1, mapping strength is 3. सेम वे फॉर PO2, वहाँ पे अगर आप देखोगे 3 जो PO के पैरामीटर की इंडिकेटर है, दे विल गेट मैप, देयरफॉर मैपिंग स्ट्रेंथ इज 75%, मैपिंग प्रोबेबिलिटी 75%, मैपिंग स्ट्रेंथ इज 2। तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं था कि गायरोस्कोप के लिए मैथमेटिकल कंसेप्ट जो भी लगवाएगा उससे वो नेचुरल साइंसेस वगैरह कुछ उसमें डिस्कस कर पाएगा और कुछ उसमें पढ़ पाएगा। देयरफॉर दैट पर्टिकुलर performance indicator will not get attained over there, therefore 75%, and to same way in 3rd column 2 PIs will get mapped and probability of mapping strength is 3. So in such way we can develop a articulation matrix of COPO mapping. Suppose that particular subject having 5 COs, हर CO का 1 का वही प्रोसेस होगा, CO2 का वही प्रोसेस होगा, 3 का भी वही प्रोसेस होगा, सेम वे दैट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एट फाइनल यू विल गेट a final articulation matrix for CO, PO and PSO mapping for that particular course or for that particular subject. So here we come to the attainment process of course outcome, and from here the journey start for the outcome based education, and where we can implement AI, because this is a artificial intelligence we are using to implement OBE. So course attainment or any type of attainment in OBE always categorized into 2 parameters, whether we are considering course attainment or program attainment or PO attainment or PSO attainment. All attainment in NBA, CO and PO categorized in 2 parts. Number 1 is the direct attainment and number 2 is the indirect attainment. And direct attainment means through your regular teaching learning process, assessment process, whatever assessment process you are using for the assessment of your student, from that whatever attainment you get, that attainment will considered as a direct attainment, and whatever attainment you get through the feedback of the students, that attainment will considered as a indirect attainment. So indirect attainment always we take through feedback from in both cases, in program outcome attainment process and course outcome attainment process. So direct attainment
always give a maximum weightage 80%, 20%. In some cases that might get vary. Some institute having a 70-30, some institute having a 60-40 ratio are there. इसका कोई universal law नहीं है. Always there is a direct attainment 80% and indirect attainment is 20%. You can take 70-30 or 60-40. If you आपको लग रहा है मुझे 50-50 लेना है तो यू कैन टेक इट एज अ 50-50. बट कोई भी कोर्स कोऑर्डिनेटर इसको डिसाइड ना करिए. जो बाहर के इंस्टीट्यूट वाले हैं उनको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ. एवरी इंस्टीट्यूट हैविंग अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉट एवर डेवलप बाय देयर अथॉरिटीज. प्रोसेस फॉलो दैट प्रोसेस ओनली. नहीं तो एक क्लास के एक डिपार्टमेंट के अंदर 5th सेम के 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं. सम फैकल्टी विल टेक 80-20, दूसरा करेगा 60-40 और तीसरा करेगा 50-50. तो लास्ट में जब पीओ अटेनमेंट होगा एंटायर बैच का तो वो कभी अटेनमेंट प्रोसेस कंप्लीटली अचीवेबल नहीं होगा. Totally is a different aspects are there. So direct attainment always give a higher weightage because we are calculating through our regular assessment process. So direct attainment get categorized into 2 parameters, internal assessment and external assessment. Internal assessment के लिए आप कुछ भी tool use कर सकते हो. आपको लग रहा है 3 tool use करना है, you can use 3 tool. If you want 4 tools, you can use 4 tools, and if you want 5 tools, you can use 5 tools. Those who are old faculty of our institute, previously we have a 5 tools, okay, but thanks to our dean OBE उन्होंने 3 कर दिए because जितने numbers of tools रहेंगे always documentation part will increase in that ratio. If 5 tools are there, you have to prepare the document for 5 tools. 3 tools are there, you have to prepare the documentation for 3 tools. And for external assessment, जो यूनिवर्सिटी पैटर्न में है उनके लिए यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम रहेगा. And those who are in autonomy, they have their own end semester examinations over there. So weightage is given, 40 marks weightage is given for internal assessment and 60 mark weightage is given for the external assessment. Again that ratio you can vary. University having 30-70 ratio right now in CBCS, all they having a 20-80 ratio, and now we are having a 40-60 ratio. So that ratio mass pattern also get varies from institute to institute and universities to universities. So here for the assessment purpose you can use any tool. You can use assignment, unit test, midterm examination, end semester examination. If you are conducting at your own level, means जो university में है उनमें उसमें प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता है, वी कैन टेक दैट एग्जामिनेशन ऑल्सो टूल फॉर द assessment of our student in internal assessment. So in our institute we have a 3 tool, CT1, CT2 and CA. Continuous assessment marks are there for 10 marks and कोर्स अटेनमेंट आपका 20% वेटेज है. आप वो मैं बताऊंगा फीडबैक के साथ कैसा होगा. सो टूल वन से आप कौन से CO मैप कर रहे हो दैट ऑल्सो यू डिसाइडेड. इफ यू आर हैविंग 3 टूल्स तो आप हाउ मेनी COs यू आर मैपिंग बाय यूजिंग दैट टूल्स यू हैव टू डिसाइडेड इट. अगर मैं 5 टूल लेता तो मुझे 5 टूल से कौन से CO मैप करना है ये मुझे पता होना चाहिए, नहीं तो आपका अटेनमेंट प्रॉपरली होगा नहीं. सो CT1 वी आर कंसिडरिंग all this process for 5 COs. We are considering our ideal COs are 5, not 6. So we have to map a 5 COs, attainment of the 5 COs. So tool number 1 we are using for the mapping of CO1 and CO2. Tool number 2 we are using for the mapping of CO3, CO4 and CO5. And tool number 3 जो भी है आपका क्लास असेसमेंट, दैट टूल वी आर यूजिंग फॉर
all units by using our third tool. We are mapping, we are assessing CO1, CO2, CO3, CO4 and CO5. So this is the overall weightage of CO distribution. टूल को कितना वेटेज ऑफ मार्क्स दिया है दैट गिवन्स ओवर हियर. CT1 इज यूज फॉर मैपिंग ऑफ CO1 एंड CO2. तो CT1 में अपन वेटेज दे रहे हैं CO1 के लिए 7.5 मार्क्स. CO2 के लिए कितना वेटेज दे रहे हैं 7.5 मार्क्स. एंड जो आपका टूल नंबर 2 है उससे अपन कितना वेटेज दे रहे हैं फॉर CO3, CO4 एंड CO5 5 मार्क्स. एंड जो आपका लास्ट टूल है क्लास असेसमेंट, वी आर टेकन फॉर 2 मार्क्स फॉर ईच CO1 के लिए भी 2 मार्क्स के लिए एक असेसमेंट लेंगे, 2 के भी लिए लेंगे, 3 के भी लिए लेंगे, 4 एंड 5. सो टोटल वेटेज जो हो रहा है इंटरनल मार्क्स का असेसमेंट मार्क फॉर CO1 कितना हो रहा 7.5 प्लस 2 9.5. CO2 का भी टोटल वेटेज इंटरनल में कितना हो रहा 9.5. एंड CO3, CO4, CO5 having total internal marks weightage 777 marks. And for end semester examination CO1 का वेटेज है आपका 12 मार्क्स का, CO2 का वेटेज है आपका 12 मार्क्स का. ऑल यूनिट हैविंग ए इक्वल वेटेज बिकॉज 60 मार्क्स का आपका एंड सेमेस्टर का पेपर रहेगा. इक्वल वेटेज इज गिवन फॉर ऑल COs. तो टोटल असेसमेंट जब हो रहा आपका 100 मार्क्स का, तो आपका CO1 में कितना कंट्रीब्यूशन है 21.5 मार्क्स, 22.5 मार्क्स. CO3 के लिए कितना है 19 मार्क्स, CO4 के लिए कितना है 19 मार्क्स एंड CO5 के लिए कितना है 19 मार्क्स. तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बोला था कि व्हाट इज द मैपिंग क्राइटेरिया. वी आर मैपिंग आवर COs बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी मैट्रिसेस. बट मैंने बोला था आप मार्किंग से भी क्या कर सकते हो मैप कर सकते हो. अगर आपको लिख रहा है वेटेज ऑफ CO1 एंड CO2 असेसमेंट में ज़्यादा है तो CO1 का भी आप अटेनमेंट क्या लिख सकते हो मैपिंग स्ट्रेंथ 3 और इसको क्या कर सकते हो कम कर सकते हो. बट दैट प्रोसेस इज क्वाइट लेंदी. Therefore I am not explaining that process to all of you because you are familiar with that process. Go with that process. So यहाँ से आपका शीट चालू होगा. जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अभी थ्योरी होने के बाद मैं बताऊंगा. So if I am considering any subject having a 5 COs, okay, COs के बाद आपने मैपिंग किस PO के साथ की है आपको वहाँ पे लिखना है. उसका कॉग्निटिव लेवल जो है असेस ये नॉलेज लेवल डोमेन का जो लेवल है कॉग्निटिव लेवल यू स्पेसिफाइड ओवर देयर एज पर ब्लूम टेक्सोनॉमी. अप्लाई लेवल है आपका क्या है क्या नहीं. और टोटल नंबर ऑफ क्लास सेशंस आर देयर. ये भी आप वैरी कर सकते हो. मैं अपने इंस्टीट्यूट वालों को बोल रहा हूँ अभी आप मैच्योरिटी लेवल पे आ गए हो बिकॉज नाउ यू आर एंटरिंग दोज डिपार्टमेंट हैविंग अ फर्स्ट साइकिल उनका अच्छा हुआ था एंड नाउ दोज डिपार्टमेंट गोइंग फॉर फर्स्ट टाइम उनको ठीक है. बट इन नेक्स्ट साइकिल वी हैविंग अ tier 1 format and in tier 1 format if you are showing like that सभी के सभी सब्जेक्ट्स जो है क्लास सेशन 9 घंटे के ही है. ऐसा कभी आइडियली होता नहीं है. कोई यूनिट आपका क्या रहेगा टफ रहेगा, कोई यूनिट क्या रहेगा इजी रहेगा. तो बीइंग एज एन टीचर व्हेन वी आर डेवलपिंग टीचिंग प्लान फॉर एनी सब्जेक्ट so those units are easy. That unit might get complete within a 6 hours. Those units are
at tough level, at difficulty level of 3, that unit might be required 12 classes. So you have to redefine your curriculum. कोई बोले या ना बोले, बट मैं आपको बोल रहा हूँ, यू हैव टू रीडिफाइन योर करिकुलम डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल. दिस वन इज द आइडियल केस. आई विल कंसिडर इट, वॉट एवर मैपिंग इज देयर आई विल कंसिडर इट, बट माई सजेशंस टू यू, ये कभी ऐसा रहेगा नहीं इन एनी वेयर. जो आपके क्लास सेशंस है वो भी डिफरेंट रहेंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कॉग्निटिव लेवल क्लास सेशन विल गेट वैरी. अगर ये इसका अप्लाई लेवल है, माइट बी 6 hours सफिशिएंट इज देयर. इफ सम पीओ इज ऑफ डिज़ाइन लेवल, उसका कॉग्निटिव डोमेन लेवल आपका 4 and 5 जा रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए आपको डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, तो आपके वर्किंग आवर्स क्या लग सकते हैं, टीचिंग आवर्स क्या लग सकते हैं, ज़्यादा लग सकते हैं. सो हियर आर दी टूल्स, एंड अकॉर्डिंग टू दैट टूल्स एक्सेल शीट्स आर डेवलप. सो CT1 जो आपका होगा वो टोटल कितना मार्क्स के लिए होना चाहिए, 15 मार्क्स के लिए होना चाहिए. कितना मार्क्स के लिए होना चाहिए, बिकॉज वेटेज कितना है इंटरनल मार्किंग का, 15 मार्क्स, बट वी आर टेकिंग CT1 फॉर 20 मार्क्स. किसके लिए ले रहे, 20 मार्क्स. तो 20 मार्क्स तो आपको उधर मिलेंगे, बट वो आपको वहाँ पे 20 मार्क्स देते रहेंगे क्या, नहीं. तो सी हियर फॉर CO1 वी हैविंग 2 मार्क्स एंड CO1 वी हैविंग 8 मार्क्स. मीन्स एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 8 + 2 10 marks out of 3 questions, all any 2. Same way CO2 of 2 marks and CO2 के लॉन्ग क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए, सॉल्व आउट ऑफ एनी 3 एनी 2. सो वॉट एवर स्टूडेंट विल राइट अकॉर्डिंग टू दैट असेसमेंट यू आर पुटिंग मार्क्स ओवर देयर. सो आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट विल गेट सम मार्क्स 11 10 वॉट एवर मार्क द स्टूडेंट गेट ओवर देयर. एंड आपको लास्ट मार्क्स इंटरनल तो आपको देना है 15 आउट ऑफ, सो यू आर कन्वर्टिंग दैट 20 मार्क्स इनटू 15 मार्क्स. फॉर्मूले लग जाके कन्वर्ट होगा, बट आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द असेसमेंट ऑफ ईच CO. तो CO1 में उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं. इफ वी सी द CO1 हाउ मेनी मार्क्स स्टूडेंट विल गेट इन CO1, तो CO1 में उसको कितना मिल रहा है, 2 0 मार्क है. यहाँ पे कितना है, 0. दैट 0 फॉर CO1 एंड 3 + 2 5 marks for CO2. तो 0 + 5, what, how many marks getting for CO1, 5 marks. And for CO2 here the student will get a 2 marks, and here that student will get a 4 marks. So total 6 marks he will get for that CO. तो जो अभी मार्किंग मिल रही है 5, वो कितने में से मिल रही है स्टूडेंट को, आउट ऑफ 10. एंड फॉर 2 6 मार्क मिल रहे, दैट मार्क विल गेट आउट ऑफ 10. बट हाउ मच वेटेज एक्चुअली यू गिवन इन इंटरनल मार्किंग सिस्टम, 7.5. सो अगेन कन्वर्जन इज देयर, यू हैव टू कन्वर्ट हाउ मेनी मार्क्स स्टूडेंट विल गेट आउट ऑफ 7.5. तो 10 में से 5 मिले तो 7.5 से कितना मिलेंगे, वो कैलकुलेशन मैंने किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे. 5 into 7.5 divided by 10, you will get a mark out of 7.5 for CO1 and CO2. Same way we have to follow process for all students. We will get a attainment for CO1 and CO2. Then our next tool is CT2. Here also we have a short question and long question. Internal weightage कितना है, 5 marks, but we are taking for 30 marks. CT2 कितने के लिए ले रहे हैं, 30 marks. 2 marks short question, 8 marks long question. 2 marks short question, 8 marks long question. So CO3 10 marks total question पूछे जाएंगे CT2 में. CO3 4 पे भी कितने 10 marks का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड CO5 also you will ask the question for 10 marks. So according to 10 marks, how many marks student will get, you can enter their marks. और यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, आउट ऑफ 30 हाउ मेनी मार्क्स स्टूडेंट विल गेट ओवर देयर,
but again you have to convert into 15 marks because internal आपके 40 है, internal 40 60 है, तो 15 city 1 15 city 2, so again we converted 30 marks out of 15 marks, 9 marks will be there, and CO3 CO4 CO5 को कितना वेटेज था 5 5 5 marks, so for CO3 the student will get a 6 marks, कितना मिल रहा है 6, 10 out of 6, so 5 out of कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो 5 out of what will get student 3 marks, same for CO4 10 marks मिल रहे, 10 का हाफ हो जाएगा 5, and for CO5 he will get 2 marks, 10 out of 2 to 5 out of 1. Same way you can calculate for all the student as per their assessment what you are doing. Then CA is come into existence, and here all you have to implement AI. इनोवेटिव असेसमेंट टेक्निक्स जो मॉर्निंग के सेशन में भी बोला गया था, कल के सेशन में भी बोला गया था, फ्लिप क्लासरूम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, केस स्टडीज, वॉट एवर innovative assessment techniques you are using, you have to use that techniques over there. Nowadays what you are doing? Nothing, just putting marks. नहीं तो असाइनमेंट ले रहे हैं, MCQ ले रहे हैं. This is not a innovative way of assessment. So you have to use your favorite tool ChatGPT over here. So don't use ChatGPT blindly. ओके क्योंकि जो मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs जो भी है आपका, और AI का है बायस है काफ़ी ज़्यादा, एंड जनरेट अ फेक डेटा, ये AI का काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है. ChatGPT 50% टाइप जनरेट अ फेक डेटा जो रिलेवेंट टू मी नहीं है, रिलेवेंट टू माई सब्जेक्ट नहीं है, रिलेवेंट टू माई स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन नहीं है. यू आर आस्किंग question to ChatGPT will give something very good answers to you, but आपके बच्चे का वो लेवल ही नहीं है, आप वो टेक्निक से बच्चे को पढ़ा ही नहीं रहे हो, एंड यू आर डेवलपिंग असेसमेंट इन दैट वे, तो बच्चा कभी वो असेसमेंट असाइनमेंट सॉल्व कर ही नहीं पाएगा. इसीलिए OBE में करिकुलम जो भी है उसका थरो नॉलेज एक कोर्स कोऑर्डिनेटर को होना चाहिए. इफ कोर्स कोऑर्डिनेटर हैविंग अ थरो नॉलेज ऑफ योर कोर्स, तो आपको कोई भी एक्सपर्ट कोई भी क्वेश्चन पूछे यू आर आंसरेबल टू दैट. बट यू डोंट हैव अ थरो नॉलेज ऑफ योर कोर्स, यू नेवर एक्सप्लेन OBE टू एनीवन, एनी एक्सपर्ट, और इवन दो योर कलीग ऑल्सो. Okay, so for CA1, CA2, CA3, CA4, CA5 you can use the ChatGPT over there. तो ChatGPT में सिंपल जाओ, अभी मैंने जब भी टेस्ट किया कि what are the various techniques are there, innovative assignment techniques, तो ChatGPT will give the various types of options are there. I am taking a topic for my designing subject, तो comparative analysis poster Spurgear होता है. रिवर्स इंजीनियरिंग असाइनमेंट टेक्निक है, केस स्टडी बेस्ड डिज़ाइन चैलेंजेस आर देयर, एंड नंबर्स ऑफ टेक्निक्स आर देयर ChatGPT विल गिव यू, बट अमॉन्ग दैट विच इज सुटेबल फॉर यू, आप कौन से वे से आपने बच्चे को पढ़ाया है, फ्रॉम दैट वेरी इनोवेटिव टेक्निक यू हैव टू आइडेंटिफाइड वन ऑफ द टेक्निक. आई कंसिडर्ड इज, मैं लेता हूँ, मैं केस स्टडी बेस्ड डिज़ाइन चैलेंजेस अच्छा है, आई विल टेक दैट टेक्निक एज द इनोवेटिव असेसमेंट टेक्निक ऑफ माई स्टूडेंट, एंड आई विल डेवलप वन केस स्टडी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ Spurgear. सो हियर ChatGPT विल गिव यू अ यहाँ पे मैंने लिख दिया कि क्रिएट असाइनमेंट ऑन डिज़ाइन ऑफ Spurgear
case study based design challenges and also develop a rubrics for assessment of assignment for marking range 0 to 10। तो इसने केस स्टडी बना दिया कि ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, असाइनमेंट ब्रीफ रहेगा, आपके सेक्टर्स क्या है, रिपोर्ट कंटेंट क्या होना चाहिए। तो दीज आर माई दी रिपोर्ट कंटेंट। तो मैं एक ऑब्जेक्टिव लिखूंगा दैट ऑब्जेक्टिव इज रिलेवेंट टू माई कोर्स आउटकम। वो किसके साथ रिलेवेंट होना चाहिए, माई कोर्स आउट के साथ। कोर्स आउटकम के बाद व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम माई स्टूडेंट, ही विल डिजाइन entirely solve the design procedure for that। आफ्टर सॉल्विंग डिजाइनिंग, सपोज पर गेयर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, इनर डायमीटर कितना होना चाहिए, स्पर गेयर के ऊपर नंबर ऑफ टीथ कितने होने चाहिए। ऑल दिस थिंग्स स्टूडेंट विल कैलकुलेट बाय यूजिंग डिजाइन प्रोसीजर, मैथमेटिकल फॉर्मूला। और वंस स्टूडेंट विल गेट दैट डेटा, स्टूडेंट ने वो कैड मॉडल पे जाके उसका ड्राइंग बनाया एंड दैट रिपोर्ट ही विल सबमिट टू यू। कैलकुलेशन हो गया, मैंने बोला कि मारुति 800 कार के लिए मुझे स्पर गियर बनाना है जिसका पावर कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 1000 टॉर्क, bhp पावर बोलते हैं, 800 bhp पावर बोलते हैं। और ये जो बच्चे का रोल नंबर है उतना पावर उसको दे दो, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, बिकॉज एवरीवर गेटिंग डिफरेंट पावर, सोल्यूशन ऑफ एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, नो वन विल गेट कॉपीड दैट सोल्यूशन, और सबका ड्राइंग क्या बनेगा, अलग बनेगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल आस्क फॉर रूब्रिक्स। तो हियर यू विल गेट अ रूब्रिक्स ऑफ मार्किंग, कैसे आप उसको मार्क्स दे सकते हो। तो यू विल गेट अ क्लियरिटी, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गिव अ मार्क्स टू स्टूडेंट। सो स्टूडेंट विल गेट suppose that entire assessment is for 10 marks, तो out of 10 student will get 8 marks। तो आपको तो assessment पे कितने मार्क्स देना है, 2 marks। again convert that whatever marks student will get out of 10 out of 2 and put in that assessment sheet। तो आपको CO1 के लिए इनोवेटिव मिल जाएगा असेसमेंट, CO2 के लिए मिल जाएगा। आप n नंबर ऑफ असेसमेंट टूल बना सकते हो इनोवेटिव इससे, बट आपका टीचिंग टेक्निक क्या है और व्हाट इज योर करिकुलम एंड व्हाट आउटकम यू आर एक्सपेक्टेड, ये जब तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं रहेगा, यू नेवर एबल टू डिज़ाइन अ इनोवेटिव असाइनमेंट पैटर्न और एनी टेक्निक्स, और उसका रूब्रिक्स भी आप कभी बना नहीं पाओगे। और बना भी लोगे तो यू नेवर एबल टू एक्सप्लेन टू एनी कमिटी मेंबर्स। ओके, so keep this thing in mind। So here you can use AI properly, because this all in your hand, what type of assessment pattern you are using for the assessment of 5 COs। so यहाँ पे आपका CI के इंटरनल मार्क्स मिल जाएंगे। सपोज 9.5 में से उसको कितने मार्क्स थे, 7.5 मीन्स CO1 में अगर मैं यहाँ पे देखूँगा CT1 में 3.75 यहाँ पे मार्क्स थे CO1 में, और CA में कितने थे, 2 मार्क्स। तो 3.75 प्लस 2 कितना हो रहा, 5.75। सो आई विल चेक CI, तो यहाँ पे कितना आ रहा, 5.75 out of 9। so same way for CO2 also you get a marks, CO3, CO4 and CO5, and here you will get a how much internal marks students will get out of 40 marks। okay, then CO1 का अटेनमेंट है। अभी ये जितने भी आपने अटेनमेंट निकाले थे इन द रेंज ऑफ 10 निकाले थे, तो यहाँ पे सभी को कन्वर्ट करके कितने में किया है, इन द फॉर्म ऑफ 100% किया है। ठीक है, ठीक। तो ये आपका इनडायरेक्ट मीन्स इंटरनल असेसमेंट है। सो 9.5 अगर अपन 100% कंसिडर कर रहे हैं तो 9.5 में से उसको कितने मार्क मिल रहे हैं, 5.75।
सपोज आई विल राइट ओवर हियर 9.5 में से उसको मिल रहे हैं 5.75, सो 100 में से कितना मिलना चाहिए? अगेन वी आर कन्वर्टिंग इन द रेंज ऑफ 100, तो मल्टीप्लाई कर दो वहाँ पे, सिंपल कैलकुलेशन है। ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसके डिवाइड में 9.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 60.53 आउट ऑफ 100। सेम वे फॉर ईच CO यू आर कैलकुलेटिंग 100%, सभी का कितने में कन्वर्शन करोगे? 100%। एंड फॉर ईच स्टूडेंट यू विल गेट अ इंटरनल अटेनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर CO फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो यहाँ पे लास्ट में आपको पूरा का पूरा इंटरनल अटेनमेंट मिल जाएगा। तो नाउ वी हैव टू डिसाइड द अटेनमेंट लेवल। अभी आपने असेसमेंट किया, बट वो जो CO है उसका अटेनमेंट हाई हुआ, लो हुआ कि मॉडरेट हुआ, दैट थिंग्स यू हैव टू डिसाइड। एंड फॉर दैट यू हैव टू डिसाइड अ थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू आप 60 भी रख सकते हो। 60% ऑफ स्टूडेंट्स मीन 60 मार्क्स मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे। थ्रेशोल्ड वैल्यू आप 40 भी रख सकते हो, 50 भी रख सकते हो एंड 70 भी रख सकते हो। तो ये डिपेंड करेंगे आपके डिफ़िकल्टी ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर। मैथ होगा तो मैथ का आप 40 भी रखोगे तो चल जाएगा, बिकॉज डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। वही एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, उसके लिए आप क्या रख सकते हो, थ्रेशोल्ड वैल्यू ज़्यादा रख सकते हो। इफ नॉर्मल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स, तो उसके हिसाब से आप क्या डेवलप कर सकते हो, थ्रेशोल्ड डेवलप कर सकते हो। सो हियर आई डेवलप कंसीडर्ड थ्रेशोल्ड इज 60%, कितना? 60%। एंड देन आई डेवलप अ बेंचमार्किंग। इफ माई 55% ऑफ स्टूडेंट will get a marks more than 60%, up to 55% of student will get a marks more than 60%, तो आपका अटेनमेंट लेवल कितना रहेगा? 1। if my 55% to 70% student will get a marks मोर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो मेरा अटेनमेंट कितना रहेगा? 2। एंड इफ माई 70% ऑफ स्टूडेंट विल गेट अ मार्क मोर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, दैट इज 70%, सो माई अटेनमेंट लेवल इज 3। तो मैंने कितना अटेनमेंट सेट किया? 60 सेट करने के बाद यहाँ पे कितने बच्चे हैं मोर देन 60 से? 24 स्टूडेंट्स आर देयर, दोज हु स्कोर द मोर देन 60% मार्क्स। Here 34 students will score more than 60% marks. Here 37 students will score more than 60% marks. And here 30 students will score more than 60% marks. And in that last CO number 5, only 3 students will score more than 60% marks. So यहाँ पे मैंने percentage निकाला, whatever total number of students are there divided by number of student who score the more than 60% mark। तो यहाँ पे मेरा परसेंटेज आया 59, नेक्स्ट में आया 83, नेक्स्ट में आया 90, देन 73 एंड 7%। सो अकॉर्डिंग टू बेंचमार्क फर्स्ट जो मेरा हो रहा है वो कितना परसेंट आ रहा है? 59। सो फॉर 55 to 70% मेरा लेवल ऑफ अटेनमेंट कितना है? 2। तो आई विल पुट अ 2 मार्क्स ओवर देयर। देन for CO number 2, number 3 and CO number 4, 70% of students scoring more than threshold value, तो मेरा level of attainment कितना है? 3 है। एंड लास्ट में लेवल जो आ रहा है वो 7% आ रहा है, मीन्स अप टू 55% है, 0 to 55% में के अंदर में आ रहा है, देयर फॉर अटेनमेंट लेवल इज 1। तो दिस इज द इंटरनल अटेनमेंट। Again we take a external attainment, same way, same। अभी ये
एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम रहेगा, किसी का यूनिवर्सिटी में रहेगा। 12 मार्क्स ऑल सीओज को गिवन है, 60 मार्क का पेपर है, 5 POs आर COs आर देयर, 12 मार्क्स इज गिवन टू ऑल COs। तो अगेन शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। तो CO1 पे ऊपर 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, CO2 के ऊपर 2 मार्क का, 3, 4, 5 के ऊपर शॉर्ट आंसर। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन फॉर 5 COs फॉर 2 मार्क्स। एंड सेम वे इन सेक्शन बी वी आस्क क्वेश्चन फॉर 10 marks on each CO. Again, out of 3 you can solve any 2 questions are there. So according to that sheet is prepared. So CO1 के लिए जो स्टूडेंट स्कोर करेगा तो अकॉर्डिंग टू दैट मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। एडिशन करेंगे तो सपोज CO1 कहाँ पे है? यहाँ पे है 2 प्लस CO1 3, टोटल मार्क्स कितने मिल रहे हैं? 5। कितने में से? आउट ऑफ 12। सो हियर आई राइट अ 5 marks out of 12. Again I converted into the percent from of 100%. 12 में से 5 है तो 100 में से कितने मिलेंगे? Here is the formula 5 into 100 divided by 12, 41%. सेम वे अगर मेरे को CO2 का यहाँ पे डायरेक्ट है, इफ आई इंसर्ट वन कॉलम ओवर देयर, आई विल ऐड फॉर CO2। यहाँ पे आपका 0 मार्क्स है, मैं एंटर कर, अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, प्लस CO2 अगेन कहाँ पे? हियर 7 मार्क्स आ गए। तो 12 में से 7 है तो 100 में से कितना आएगा? पहले इसमें आपका 5 था तो 41% आ गया, 7 मार्क्स हुआ बड़ा तो कितना आया? 58% आया। तो सेम वे यू विल गेट फॉर ऑल COs in term of 100%. Again here we use a threshold. अभी इंटरनल था इसलिए थ्रेशोल्ड का वैल्यू ज़्यादा रखा था, एक्सटर्नल है तो थ्रेशोल्ड का वैल्यू कितना रखा है? 40%। मीन्स आई एक्सपेक्टेड अवर 40% स्टूडेंट, मीन्स 40% मार्क के ऊपर मेरे बच्चे लाएंगे तो मैं उनको अच्छा समझूंगा, अच्छे है। बट कितने परसेंट में, कौन से लेवल में कितने बच्चे हो रहे हैं, दैट विल डिसाइड ऑन अवर बेंच मार्किंग। अगेन हियर आई रिड्यूस बेंच मार्किंग। इफ माई 40% ऑफ स्टूडेंट विल स्कोर मोर देन 40% मार्क, देन अप टू 40% कितना रहेगा अटेनमेंट लेवल? 1। 40 to 60% रहेगा तो क्या रहेगा? 2। एंड मोर देन 60% विल स्टूडेंट स्कोर देन मोर देन 40% मार्क्स, तो अटेनमेंट लेवल कितना रहेगा? 3 रहेगा। सो अगेन सेम वे फॉर CO1 33 स्टूडेंट विल स्कोर मोर देन 40% मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर CO। उनको मैं टोटल काउंट से क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा। सो आई विल गेट अ परसेंटेज ओवर हियर। 63% आ रहे हैं, एक में 80 आ रहा है, एक में 63 आ रहा है, एक में 63 आ रहा है, 63 एंड लास्ट वन में कितना आ रहा? 34। सो अकॉर्डिंग टू दैट रेंज अबो 60% अटेनमेंट लेवल इज 3। सो 3 3 3 3 एंड लास्ट वन इज 1 बिकॉज दैट इज लेस देन 40%। ओके, सो नाउ वी कैलकुलेट बोथ एक्सटर्नल अटेनमेंट एंड इंटरनल अटेनमेंट। बट वेटेज अपन ने पहले डिसाइड कर लिया था। वेटेज क्या था? (40, 60) क्या था? 40, 60। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका डायरेक्ट अटेनमेंट मिलेगा। CI अगर यहाँ पे देखोगे, CI कितना था? 2। CI में CO1 का इंटरनल में कितना था? 2। और 3 किस में था आपका? एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अटेनमेंट लेवल कितना था? 3। तो आपका कितना आया? 2 + 3, तो 40% ऑफ CI एंड 60% ऑफ ESC। तो 2 का 40% एंड 3 का 60% कितना आएगा? 2.6। सेम वे
3333 आ रहा. So here we calculate the direct attainment. Clear? समझ रहा क्या? And for indirect attainment we use a course survey. आप फीडबैक फॉर्म लो, इसके ऊपर मैं वेटेज नहीं देता, बट फीडबैक में हमेशा बेंचमार्किंग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि सब बच्चे अच्छा ही बोलते हैं अपने को, इंटरनल मार्क्स आपके हाथ में होते हैं तो ठीक है, नहीं होते होंगे तो भी आप डाल देते होंगे उनको अच्छी. दैट थिंग्स इज मैनिपुलेटेड ऑल्सो. फीडबैक आप लेते होंगे तो फॉर योर कोर्स, अदरवाइज बच्चे आपको बहुत लाइक करते होंगे तो ज़्यादा ही मार्क्स देते होंगे. सो यहाँ पे इसीलिए इसका बेंचमार्किंग 6 अच्छा रखा है, रेटिंग स्कोर 60 के अबोव रखा है. ये आप 90% भी रख दो तो भी चलेगा. सो टोटल अटेनमेंट निकलेगा. टोटल अटेनमेंट कितना था? 80-20. डायरेक्ट का कितना परसेंट था? 80%. एंड इनडायरेक्ट का कितना था? 20%. तो 2.60 का 80% लिया जाएगा वहाँ पे एंड 3 का 20%. सो वी गेट अ टोटल अटेनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर CO is 2.68 and remaining COs is 333. So after that we have to calculate a PO attainment for that particular course. तो हमेशा ध्यान रखना, ये IT अभी जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद CSE जाएंगे ठीक है, तो मैपिंग से हमेशा अटेनमेंट कम ही लाना, गलती से भी ज़्यादा छाप मत देना, कुछ गलती वगैरह हो गई तो ठीक है. मैपिंग आपकी हमेशा क्या रहेगी? ज़्यादा रहेंगी. अटेनमेंट आपका पूरा 100% हुआ तो मैपिंग के बरोबर रहेगा, उसके ऊपर कभी नहीं जाएगा. ये थंब रूल ध्यान में रखना. और 100% अटेनमेंट बहुत कम होता है इन आइडियल कंडीशन. सो हमेशा अटेनमेंट विल लेस देन मैपिंग और योर टारगेट. सो ये मैपिंग था आपका CO का, COPO मैपिंग, आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स, एंड हियर इज अ अटेनमेंट. सो बाय यूजिंग अटेनमेंट को आप अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स के साथ, मीन्स 1 into 2.68 डिवाइडेड बाय मैपिंग स्ट्रेंथ कितना था? मैक्सिमम 3. तो आपको वहाँ पे उसका अटेनमेंट मिलेगा CO1 का PO1 के साथ. तो अटेनमेंट आपका CO1 का PO1 के साथ कितना था? 1 था. मैपिंग कितना था? 1 था. बट आपका अटेनमेंट कितना आ रहा है? 0.89. सेम वे ओवरऑल मैपिंग अगर देखेंगे PO1 का अटेनमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स कितना आ रहा? 1.07. और आपका अगर यहाँ पे मैं एवरेज कर देता हूँ 1.2. So PO1 mapping average for that particular course is 1.2, and if we see the attainment of PO1 for that particular course is 1.07. तो सेम वे आपके सभी अकॉर्डिंग टू मैपिंग एंड अकॉर्डिंग टू अटेनमेंट ऑफ CO आपको वो कोर्स का क्या मिल जाएगा? अटेनमेंट मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? अटेनमेंट मिल जाएगा. तो ये हाफ प्रोसेस है आपका. दिस इज द हाफ प्रोसेस. ओके, अभी आप जब जाओगे मैं बता देता हूँ थोड़ा फास्ट में. ठीक है, तो अभी अपन ने क्या किए? एक कोर्स का किया. एक कोर्स का क्या देखा? मैपिंग देखा, अटेनमेंट देखा. सेम वे फॉर योर ब्रांच फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर एंड नंबर्स ऑफ कोर्सेस आर देयर इंक्लूडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. तो सभी का मैपिंग आप क्या करोगे? ऐसे बनाओगे. सब्जेक्ट का कोड लिखोगे जितने भी आपके पूरे फाइनल ईयर तक सब्जेक्ट है,
और उनकी जो मैपिंग थी, मीन्स यहाँ पे जो मैपिंग था, ये ऊपर वाला क्या था, मैपिंग का एवरेज यहाँ पे आया रहता, वॉट एवर मैपिंग एवरेज इज़ देयर, वो वाला कहाँ पे आएगा, ये मैपिंग शीट में आएगा। तो ऐसे सभी कोर्स की मैपिंग आएगी, एक कंसोलिडेटेड शीट बनेगी फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। सेम वे जो अटेनमेंट होगा, मैपिंग होगा तो उसका क्या होगा, अटेनमेंट भी होगा। तो अटेनमेंट का भी एक क्या बनेगा, पूरा शीट बनेगा डिपेंडिंग अपॉन कोर्स। तो आपको मैपिंग एक जगह पेस्ट करना है और अटेनमेंट एक जगह। तो इफ देयर आर 40 कोर्सेज, तो वन कंप्लीट एक्सेल शीट विल क्रिएटेड फॉर मैपिंग ऑफ एंटायर COs, मीन्स पूरे डिग्री में वो PO का कितना परसेंट मैपिंग है, PO1 पूरे डिग्री में कितना परसेंट मैप हो रहा, PO2 कितना हो रहा, PO3 कितना हो रहा, PO4 कितना हो रहा, PO1। मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर के नहीं डाला है अटेनमेंट, ठीक है, क्योंकि मिले नहीं थे उनसे। So overall attainment we will get over here and overall mapping we will get over here. But for the mapping of PO also we have a process. Means now अभी आपका सब्जेक्ट हो गया, अभी आप पूरे डिपार्टमेंट का डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एंटायर डिपार्टमेंट वी हैव टू कैलकुलेट द PO attainment of program outcome and PSOs. So again PO and PSO attainment are categorized into two parts: direct attainment, indirect attainment. Direct having a weightage articulation matrix और COPO मैपिंग मैट्रिक्स, ये दोनों यूज़ करेंगे। मीन्स जो अभी अपन ने समरी बनाई पूरे कोर्सेज की अटेनमेंट की फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, वो क्या हो गई, अपनी डायरेक्ट अटेनमेंट हो गई। And for indirect attainment we are using various surveys. तो आप 3 सर्वे लो, 4 लो या 5 लो, हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग रोल कॉल रहेगा। फॉर अवर इंस्टीट्यूट वी आर टेकिंग 4 सर्वेज फॉर इनडायरेक्ट अटेनमेंट असेसमेंट, ठीक है। सो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स, बट यहाँ पे ध्यान रखना कितना, 80-20, ओके। तो ये ओवरऑल आपका अटेनमेंट हो गया, आया। तो कंप्लीट अटेनमेंट मैंने यहाँ पे लिखा, एवरेज कितना आया आपका, ये आया पूरे अटेनमेंट का। इसका आप कितना ले सकते हो ओवरऑल अटेनमेंट निकालने के लिए, 80%। तो इसका मैंने क्या निकाला, 80% निकाला 80% ऑफ डायरेक्ट आ गया। अभी मुझे इनडायरेक्ट लेना है 20%। तो इनडायरेक्ट के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा को करिकुलर एक्टिविटीज़, एग्जिट सर्वे, एलुमिनी सर्वे, एम्प्लॉयर सर्वे, ये सबका भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब लोग ध्यान दो। तो जो वॉट एवर रिपोर्ट्स वी आर कॉलिंग फ्रॉम यू फॉर एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, ऑल दोज रिपोर्ट्स का जो आजकल हम लोग आस्किंग फॉर अटेनमेंट ऑफ योर PO एंड PSO इन आवर रिपोर्ट्स, ऑल दोज PO PSO असेसमेंट कम इनटू इट। जो भी आपके गेस्ट लेक्चर है, इंडस्ट्रियल विजिट है, नेशनल लेवल वर्कशॉप ले रहे हो, कॉन्फ्रेंस ले रहे हो, ऑल दैट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। और ये वो बैच के लिए लेना है पूरा। मीन्स फर्स्ट ईयर में वो बैच को आपने कुछ इवेंट करवाए होंगे, गेस्ट लेक्चर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अगर वो 40 गेस्ट लेक्चर आप उसको दे रहे हो इंडस्ट्री के, तो सबका एवरेज वहाँ पे आएगा। सेम वे एग्जिट सर्वे यू हैव टू टेक आफ्टर द completion of graduation batch, not after semester। जब 8 सेम होगा उसके बाद क्या लेंगे अपन, उसका एग्जिट सर्वे। वॉट एवर एम्प्लॉयर्स वी हैव, मीन्स अपने जो एल्यूमिनीस है जहाँ पे प्लेस है वहाँ से अपन क्या लेंगे, उनका फीडबैक लेंगे कि हमने उनको पढ़ाया था, what whether the student able to that perform that task in that particular industry or not, our employers will give some feedback to us। and same way alumni भी अपने को क्या देंगे, feedback देंगे। according to that we
ऐड फीडबैक ओवर देयर, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो कॉलम लिया है 20% मेरा इनडायरेक्ट था। कितना था? 20%। तो 20% इनडायरेक्ट था एंड 4 टूल्स आर देयर, सो ईच टूल विल गेट अ 5% वेटेज। 5% फॉर को करिकुलर, 5% फॉर एग्जिट सर्वे, 5% फॉर एलुमिनी सर्वे एंड 5% फॉर एम्प्लॉयर सर्वे। तो जो फर्स्ट आपको टेबल दिख रहा है वहाँ पे मैंने 5% ही लेके लिया था, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल ये आया था। को करिकुल का पूरा एवरेज करूँगा तो 2.7, एग्जिट का 2.8, देन एल्यूमिनी का आया था 2.34 एंड एम्प्लॉयर का आया था 3। सबका एवरेज किया तो कितना आया? 2.51 एंड 2.51 का मुझे कितना लेना था? 20%। अभी सबको ऐड कर दिया ना। अगर 5% लेता है तो भी कितना आता? 0.50, और पूरे को ऐड करके उसका 20% ले रहा हूँ, स्टिल दैट कम एज अ 0। तो मेरा इनडायरेक्ट अटेनमेंट ये आ रहा फॉर ऑल पीओज एंड पीएसओज। सो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला 80% एंड 20%, तो 80% आ गया, ये आ गया 20%। अभी 80 और 20 को ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा ओवरऑल अटेनमेंट ऑफ दैट ग्रेजुएशन बैच। क्या मिलेगा? ओवरऑल अटेनमेंट ऑफ दैट ग्रेजुएशन बैच। उसमें आपके 12 के 12 पीओ और पीएसओ हो गई, ठीक है, कुछ ना कुछ लेवल पे हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा कि एंटायर डिग्री बच्चा पास हो रहा हो और वो पूरे के पूरे ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स कोई तो लेवल पे ना सीखे। एंड पीएसओ भी आपके पूरे के पूरे मैच होंगे जब ये करेंगे। तो यहाँ पे आपका अटेनमेंट आ जाएगा। यू हैव टू डिफाइन अ टारगेट्स। अभी टारगेट सेटिंग का प्रोसेस समवॉट सो मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगा। आई विल नॉट टेक ऑल दोस, बाहर के है तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो वो फिर बाकी इनको ये। सो फॉर टारगेट सेटिंग वी आर टेकिंग ए एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स रिजल्ट। जो भी वो सब्जेक्ट का लास्ट 3 ईयर का रिजल्ट है वो रिजल्ट को अपन एवरेज करेंगे एंड वॉट एवर द मैपिंग स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पीओ विद दैट कोर्स जो आपने निकाली थी मैपिंग स्ट्रेंथ। समझ रही क्या मैपिंग स्ट्रेंथ कौन सी थी? तो ये जो मैपिंग स्ट्रेंथ थी ये क्या थी? कोर्स की थी, वो पीओ के साथ। और सपोज इसका ये कोर्स का रिजल्ट है कितना? 50%। कितना है? 50%। तो 3 इंटू 50% कितना टारगेट हो जाएगा? 1.5। उसका कितना होगा? 2 का 50% 1, 1 का 50% हो जाएगा 0.5। तो ऐसे एक कोर्स का टारगेट निकलेगा। मैथ का रिजल्ट आपका लग रहा 50% एवरेज, तो उसका कितना हो गया? 50%। कोई रहेगा सी लैंग्वेज, उसका 80% रिजल्ट लगेगा। कोई आपका सिग्नल प्रोसेसिंग रहेगा, उसका 20% रिजल्ट रहेगा। तो सबका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या रहेगा? रिजल्ट का डिफरेंट रहेगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट ईच सब्जेक्ट रिजल्ट वी मल्टीप्लाई विथ द मैपिंग स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीओ, और उसके बाद इसको लास्ट में अगर समेशन करते हैं तो वी विल गेट अ टारगेट। क्या मिलता है? टारगेट। तो टारगेट कितना आया? 2.18। तो टारगेट हमेशा कितना रहेगा? मैपिंग स्ट्रेंथ से कम, और अटेनमेंट हमेशा इक्वल्स टू टारगेट। हाँ, हो ही गया, मैं ख़त्म कर देता हूँ। हाँ, तो टारगेट इज लेस देन मैपिंग स्ट्रेंथ, और अटेनमेंट क्या रहेगा? इक्वल्स टू टारगेट और लेस देन आपका टारगेट रह सकता है। तो ये आया 2.18 टारगेट। तो यहाँ पे 2.29 लिखा, तो जनरली सपोज कंसीडर कर दो। तो ये टारगेट आपको समझ गया टारगेट कैसा आया? अकॉर्डिंग टू दैट आपका अटेनमेंट आया था और टारगेट आया। तो आपको चेक करना है कितने पीओ टारगेट के साथ मैप हो गए।
अगर यहाँ पे देखेंगे तो अपना पीओ नंबर 10 का टारगेट था 1.56। हाँ, ये वाला अगर आप पीओ देखोगे इसका टारगेट था 2.04 एंड अटेनमेंट कितना आया 1.88। तो ऐसे आपको मिलेंगे जब एक्चुअल प्रोसेस होगी। तो कुछ पीओ क्या होंगे, टारगेट अचीव करेंगे, कुछ पीओ आपके टारगेट अचीव नहीं करेंगे। तो जो पीओ टारगेट अचीव नहीं करेंगे उसके लिए आप क्या लिखोगे, एक्शन टेकन रिपोर्ट, मीन्स आप रिमीडियल एक्शन क्या क्या लोगे जो नेक्स्ट बैच आने वाली है। एंड वॉट एवर पीओज आर अचीव्ड उसके लिए आप क्या करोगे, टारगेट वेरी करोगे। क्या करोगे, टारगेट वेरी करोगे बाय 5% और 10% डिपेंडिंग अपॉन योर डिपार्टमेंटल एडवाइजरी डिस्कशन जो भी होंगे। यू हैव टू पुट ऑल दोज अटेनमेंट्स ओवर देयर, ये हुआ है ओवरऑल रिजल्ट, ये दिस इज दैट। उसके बाद अगर आप चाहते हो 5% बढ़ाना तो 5% बढ़ाओ, अगर आप 10% चाहते हो तो 10% बढ़ाओ। पर जो पीओ अटेंड नहीं हुआ है उसको आप कम भी नहीं कर सकते, बढ़ा भी नहीं सकते। आपको हमेशा जो सर्कल बताया था डू एक्ट चेक मॉर्निंग के सेशन में, आपको कंटिन्यूस प्रोसेस में रहना है एंड ऑलवेज टू ट्राई टू गेट ए एक्सीलेंट रिजल्ट। और हमेशा एक्सीलेंसी ओबीई में क्या होती है, बढ़ती ही रहेंगी। तो रिजल्ट्स आपके अच्छे आएंगे, टारगेट तो आपके टारगेट बढ़ेंगे, आपकी लर्निंग पेडागॉजी चेंज होगी एंड यू विल ट्राई टू अचीव अ हाई टारगेट इन OBE. So this is the entire process of CO, PO and PSO attainment. So I stop here. Thank you. थोड़ा फास्ट लिया मैंने because entire session में काफ़ी calculations are there, but I will try to cover most of the things in my session. Thank you. If anyone having any queries, you can ask me. Any questions? So Prajakta ma'am is having question.